Hello friends, today in this video we are going to start the part 2 of the chapter The Glimpses of India, which is the Coorg. Coorg is actually a place which is the smallest district of Karnataka. This place has an amazing weather and the best time to visit this place is between September to March. The people of Coorg are known to be one of the bravest, and coffee is the main crop grown in this region. A variety of animals are found here, and this place is surrounded by a beautiful Brahmagiri hills, islands and Tibetan settlements. Friends, ये जो कूर्ग का जो स्टोरी हम लोग जो आज पढ़ेंगे ये बेसिकली जो नेचर रिलेटेड स्टोरी है. इसमें हम लोग कूर्ग का जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसका डिस्कस हम लोग करेंगे और देखेंगे कि राइटर ने किस तरह से कूर्ग को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द समरी. मैं कूर्ग के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ. कूर्ग जो है वो लोकेटेड है बेंगलोर और मैंगलोर के मिडवे में. ओके एंड यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन और स्पाइसेस बहुत फेमस है. मसाले बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और यहाँ पे अबंडेंट रेन फॉरेस्ट है जो कि 30% ऑफ द एरिया कवर करता है. और कुर्गी मैन जो है बहुत ब्रेव वेरियर्स होते हैं जो कि फायर आर्म्स रखने का उन्हें परमिशन मिला है और विदाउट लाइसेंस बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्टवर्दीनेस. Coorg is also known as Kodavu and the Kodavas. Okay, and the costumes differ. Okay, and the ethnic dress of Kodavus kupi is similar to the Arab garment kufia. The river Kaveri originates from Coorg, and the fish named here is Mahasir is found in the river. Many animals and birds like kingfisher, langur, squirrels and elephants can be spotted along the river. Tourists relax in the serene atmosphere and also enjoy adventure sports like river rafting, canoeing, rappelling, mountain biking, rock climbing, trekking, etc. And many animals like macas, Malabar squirrels, langur, slender can be spotted on the trees. The major tourist attractions are Brahmagiri Hills, Nisar Dham Island, Bailakup Tibetan settlements, and Coorg give visitors a feel of India's diverse cultures. As we all have known that Coorg is basically a very beautiful place. It's a good place. It's a hill station place and बहुत अच्छा है. And you must visit. It's in the city of Karnataka, the actual state of Karnataka. Okay, let's start the story. Line by line explanation. Okay. Coorg is कॉफ़ी कंट्री फेमस for its rainforests and spices. कूर्ग जो है वो कॉफ़ी कंट्री है जो कि फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए. स्पाइसेस मीन्स मसालास के लिए. मिडवे बिटवीन Mysore and coastal town of Mangalore sits a place of piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. और ये कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है? Mysore at the coastal town of Mangalore. Okay. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. और ये जो लैंड है इसमें इनके जो इनहेबिटेंट्स है वो कौन कौन यहाँ के लोग हैं? मार्शल मैन वो होते हैं जो कि वॉर से रिलेटेड होते हैं, युद्ध से रिलेटेड होते हैं. ब्यूटीफुल मैन है एंड वाइल्ड क्रिएचर्स है. ओके. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. मीन्स ये नेचुरली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत अच्छा रिच है, कल्चर है इसका. ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है Coorg और ये
यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है, कॉफ़ी प्लांटेशंस है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ना वो 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब 30% कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मानसून में इतनी बारिश होती है कि बहुत सारे विजिटर्स दूर ही रहते हैं, आना पसंद नहीं करते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और ये जो सीज़न ऑफ जॉय होता है, असल जो यहाँ पे जो मस्ती होती है वो स्टार्ट होती है सितंबर और कंटिन्यू होती है टिल मार्च तक में। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और यहाँ का जो वेदर है बहुत परफेक्ट होता है, अच्छा होता है। ओके, विद सम शावर्स थ्रोन इन गुड मेजर मीन्स सम शावर्स, यहाँ कहने का मतलब है थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, थोड़े थोड़े अमाउंट में, ज़्यादा नहीं होती है। ओके, the air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. यहाँ कह रहा है कि यहाँ जो है कॉफ़ी इस्टेट्स भी काफ़ी सारे हैं, कॉलोनियल बंगलोज भी है, और बहुत सारे जो है ट्री कैनपीज भी जो कॉर्नर्स में रहते हैं। ओके, The fiercely independent people of Coorg are possibly of ग्रीक और अरबिक डिसेंट, और यहाँ के जो पीपल ऑफ कुर्ग जो है ना वो कहाँ के एक्चुअली पॉसिबली कहाँ के ग्रीक के और अरबिक डिसेंट के। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और यहाँ पे अलेक्जेंडर्स एंड आर्मी जो है वो के बारे में बता रहा है कि वो यहीं पे सेटल हो गए जब रिटर्न उनका नहीं हो पाया सही से। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. बोल रहा है यहाँ के जो पीपल है वो मैरी अमंग्स द लोकल्स, वो मतलब लोकल ही, दूर दूर के नहीं, मतलब आसपास के ही लोग से ही मैरी किया करा। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट, और उसका जो कल्चर है वो क्लियर है इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और वो जो मार्शल ट्रेडिशंस में मतलब जो लीड करते हैं वो लोग का जो लोग का ट्रेडिशन है वो है मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और होता है वो जो कि बहुत अलग है हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू का जो रीति रिवाज है उससे काफ़ी थोड़ा अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, यहाँ पे ड्रेस के बारे में अब डिस्कस होगा फ्रेंड्स। ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस, कैन यू सी द ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस? नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड, व्हाट इज इट? The theory of Arab origin draws support from the long black coat. Can you see the long black coat? Okay, and what is this? With an embroidered waist belt, और उसका जो embroidered होता है मतलब वो जो कढ़ाई किया वो waist belt होता है जो कमर पे बांधा जाता है, वो उसका waist belt होता है। Worn by the Portuguese, known as कुपिया, उनके ड्रेस को क्या कहा जाता है? कुपिया। It resembles the कुफिया worn by the Arab and the Kurds, और वो रिजेंबल करता है मतलब एक जैसा दिखता है जो कि अरब्स के लोग जो पहनते हैं उसकी तरह। कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. मतलब जो है ना उनका जो वैल्यूज़ होता है हॉस्पिटैलिटी का काफ़ी ज़्यादा होता है। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकॉन्ट न्यूमरस टेल्स ऑफ, मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा किस्सा जुड़ा हुआ है। टेल्स ऑफ वैलर, टेल्स ऑफ वैलर का मतलब होता है कहानियाँ किसकी? करेज की, ब्रेवरी की, हम जो बहादुरी किए हैं, हिम्मत वाला जो काम किए हैं वॉर में, उसके पास काफ़ी स्टोरीज होते हैं सुनाने के लिए रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, मतलब जो उसके जो पापा और बेटों ने कर चुका है उसके बाद काफ़ी स्टोरी उन लोगों को सुनाने के लिए होता है। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और यहाँ जो कूर्ग जो रेजिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी में सबसे अच्छा माना जाता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरिपा वॉज अ कूर्गी। असी यहाँ पे एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज द चीफ
फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। और ये जो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जो था वो जनरल कैरेपर था, वो भी एक कूर्गी होता है। जो कूर्ग में रहता है फ्रेंड्स, उसे हम कूर्गी कहते हैं, राइट, मार्केट टाउन। इवन नाउ Kauravas आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और अभी भी कौरवों को जो ये इकलौती जो पीपल है जिस इंडिया में जिसे परमिशन मिला हुआ है गन कैरी करने का, फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। ओके, विदाउट अ लाइसेंस ही कैरी कर सकती है, इन्हें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है गन को कैरी करने के लिए। ओके, एंड जब हम उसके नेचुरल प्लेसेस के बारे में देखेंगे कि वहाँ का जो रिवर होता है वो कौन सा रिवर है, कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इन वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और ये जो है महासीर कौन है, फ्रेश वाटर फिश है, अबाउंड इन दीज वाटर्स। और यहाँ के फिश कौन थे, महासीर होते हैं। किंग फिशर्स डाई फॉर द कैच वाइल्ड स्क्विरल्स एंड langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water। कह रहे कि यहाँ का जो नेचुरल एरिया जो होता है ना, वहाँ का जो रिवर है कावेरी और जो महासीर है फिश काफ़ी ज़्यादा है। किंग फिशर्स जो है ना डाइव करते हैं, मतलब पानी में जाते हैं फिश को। बर्ड किंग फिशर एक टाइप ऑफ बर्ड है जो कि डाइव करते हैं फिश को करने के लिए। वाइल्ड स्क्विरल्स और जो स्क्विरल्स और लंगूर्स होते हैं ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग। और ये जो कह रहा है ना कि पूरे साफ पानी में रिपल इफेक्ट का मतलब होता है जब पानी में जो सर्कुलर इफेक्ट आता है ना, गोल गोल सा जो इफेक्ट आता है कुछ गिरने पे, वही तो लंगूर और स्क्विरल्स जो होते हैं ना, आधा खाया वो फ्रूट उस पर डालते हैं और वो देख के खुश हो जाते हैं जब पानी में रिपल इफेक्ट आता है। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। Elephants के बारे में कहा गया है वो enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। Okay, the most laid-back individuals became converts to the life of high-energy adventure with river rafting। यहाँ पे sports, water sports भी काफ़ी सारे होते हैं, like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing। यहाँ पे काफ़ी सारे सुनने में लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्लेस है, नेचुरल प्लेस है यहाँ पे। ओके, नेचुरल प्लेसेस है, इट्स अ गुड प्लेस एक्चुअली। एंड द बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रेकर्स। काफ़ी सारा हम लोग ने पढ़ा, और वॉकिंग ट्रेल्स को ये जब मार्क बन जाता है ना, निशान बन जाता है ना, जब तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेल्स। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू अ कंपनी। और वहाँ पे आपको लोनली फील नहीं होगा, एक्चुअली यू विल बी इन द लैप ऑफ नेचर। ओके, मैगोज, malibus, squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy। और मतलब वो ट्री में बैठे रहते हैं सारे बर्ड्स, एनिमल्स जो होते हैं। आई डू however prefer to step aside for wild elephants। और वहाँ पे जो है ना वाइल्ड एलिफेंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और हम चाहते हैं कि उसे विजिट करें, मिले। द क्लाइंब ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स। और यहाँ पे हिल्स कौन सा है, ब्रह्मगिरी हिल्स। बोल रहा है कि ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ने से ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू टू द एंटायर मिस्की लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। हिल्स पे हम लोग कुछ ऊंचाई पे हिल्स पे चढ़ेंगे ना, पहाड़ों पे, तो वो क्या होता है ना, वो हमें काफ़ी पैनोरामिक व्यू होता है। पैनोरामिक व्यू होता है मतलब ज़्यादा व्यू, मतलब ब्रॉड व्यू। ओके, ब्रॉड व्यू, वाइड एरिया। जबकि हम लोग बहुत दूर से, जब हम ऊंचाई से कुछ देखते हैं ना तो हमें सब कुछ नजर आता है। ओके, तो वही कह रहा है कि जब हम पैनोरामिक ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ते हैं ना तो हमें पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरा लैंडस्केप का ऑफ कूर्ग का। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज। और यहाँ पे जो रोप ब्रिज है ना, वो उसके रोप ब्रिज के वॉक अक्रॉस करोगे तो क्या होता है, लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गदमा running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Balakup is a bonus। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ का जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, जो इंडियाज़ लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट्स है एट नियर बाय बालाकूप, यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस के बारे में बता रहा है कि इट्स वाइज डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, कमी नहीं है जगह की।
Okay, Tibetan is a bonus. The monk in red, ochre, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. और यहाँ पे जो उसके जो monks जो होते हैं ना, उनका कॉस्ट्यूम के बारे में बता रहा है क्या होता है. रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, ऊपर से जो येलो रोब होता है ना, रेड होता है, रेड ऑकर होता है एंड येलो रोब्स, मतलब ऊपर से जो पहनते हैं ना, श्रग काइंड ऑफ कह सकते हैं. आर अमंग द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स. और मतलब इतने मतलब ऐसे ही लोग इतने अच्छे से रहते हैं कि जितने भी विजिटर्स होते हैं ना, ये लोग को बहुत मतलब अच्छा लगता है कुछ नई चीज़ को देखना. Searching for the heart and soul of India right here in Coorg. And right heart and soul of India को कहा गया है जो कि कूर्ग में ही प्रेजेंट है. क्योंकि हार्ट एंड सोल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे नो नेचर है, यहाँ पे नो नॉइजी प्लेस. इट्स अ क्वाइट प्लेस, राइट, नॉट आउट फ्रॉम द बिजी स्ट्रीट्स. ओके, मतलब हशल बशल नहीं है, काफ़ी अच्छा प्लेस है ये. एंड यू शुड विजिट. Okay, I hope you like the video, and please do like, share and subscribe the channel if you want more videos like this. Thank you.